नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कौर बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। To all our viewers in China, ni hao to all our viewers in Japan, konnichiwa, Pradeep ji. Mariako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. And in case you have not subscribed to the channel so far, please do subscribe. Subscribe जरूर करेंगे please. When you click to that icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now. Nation Now, the fastest growing channel of the nation. The Real People's Channel. Real People's Channel. So Pradeep ji, 3 F-15 Eagles shot down by friendly fire over the skies of Kuwait. Iran, Yes. of course, claims they've shot them down. Yes, The F-15 Eagle, by the way, is still one of the most advanced aircraft, even though it's an older aircraft. It's a fighter, interceptor, and a battle controller. And my God, it's one of the best aircraft going. It is. I mean, in the roles, of course, are different. The F-16 is just a fighter and interceptor, but this is also a battle controller. By the way, it's the Indians. The Indian Air Force had wanted something like it long time ago. Finally, we had to decide against it. But for 3 F-15 Eagles to come down, I don't think that has ever happened before. Three of them down. It shows how confused the planning is. Yes, friendly fire. There's no coordination. They say friendly fire. I'm not Yes. so sure. The Iranians say we shot them down. और दूसरी चीज़ क्या है, कनाडा के प्रेसिडेंट जो है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, मार्क कार्नी साहब हिंदुस्तान में हैं और उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि भाई खालिस्तानियों को अब इजाज़त नहीं दी जाएगी कनाडा की ज़मीन इस्तेमाल करने के लिए भारत के खिलाफ। अब नहीं होगा। कोई अगर खालिस्तानी कुछ उल्टा सीधा करता है उसको या तो जेल में डाल देंगे या डिपोर्ट कर देंगे। डिपोर्ट कहाँ करेंगे? बिकॉज वी डोंट वांट देम। आई एम श्योर दे कैन डिपोर्ट देम टू पाकिस्तान। And Rahul Gandhi ji in Punjab is at it again. He says the Indo-US deal is a death warrant for the farmers. Yep. Now, whenever he specifies the threat, he uses highly exaggerated words. Death warrant. It's a death warrant for the farmers of India. I don't know how he knows Indo-US about deal. it. My point is that maybe who's briefing him. Maybe he's right, maybe he's not. I don't know. I have no idea because as far as I know, I don't know the details of the deal so far. अभी तक तो मुझे मालूम नहीं है साहब. There are certain things where the duty has been lowered, but these were like sorghum, for example, soybean oil, etc. that we were already importing from the United States of America. वहाँ पर थोड़ी बहुत ड्यूटी अगर कम की गई है तो की गई है. I understand. The soybean farmers in India are already in trouble. If you get soybean from the United States and it's going to be great quality soybean, our farmers are really going to be in trouble. There's no doubt about it. But on the other hand, you look at what we are getting from the United States. Pharmaceutical, zero tariffs. Steel and automotive parts, zero tariffs. IT services, zero tariffs. And not only that, aluminium and steel products, zero tariffs. Leather goods, zero tariffs. So, well, I think it can't really be a zero-sum game everywhere. You give something, you take something. You take something, but most of the analysts say that our agricultural exports have to pay 18% and their imports have to pay 0%. Agricultural products are concerned. The imports coming into India of agriculture is zero tax. You know, I kind of have we have to pay 18%. That's what. No, we don't have to pay it. We don't have to pay it. The US importers have to pay it. Whoever have to pay, you're increasing your tax by 18%. Sir, ऐसा है. Your products are becoming expensive by 18%. That's right. Your products are becoming more expensive. Yes. By about anywhere between 13 to 18%. Correct. In the United States of America. बिल्कुल दुरुस्त बात है. और यहाँ पर जो अमेरिकी products आएंगे, they'll be anywhere between 0% to what used to be there earlier. Now, point is this. There's another way of looking at it. Indians will get American goods cheaper. सीधी बात है. You have to pay less. You want to buy American goods? They are already so expensive anyway. पहले से ही इतने ज़्यादा कीमती हैं कि भले उन पे आप 5% ड्यूटी दें या 150% ड्यूटी दें, जो लोग पहले खरीद रहे थे अभी भी वही खरीदेंगे. कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है. Anyway, that's my opinion. I could be wrong. In any event, let's go straight across to our guest. I think we've got for the first time Yuvraj Singh Yadav Sahab from the Congress Party with us. Let's go straight across to Yuvraj Singh ji. Namaskar. Yuvraj Singh ji, namaskar.
सर आपका शायद मोबाइल म्यूट पर है, जरा अनम्यूट कीजिएगा ना सर। बात कीजिए आप। युवराज सिंह जी नमस्कार, बोलिए, कुछ बोलिए सर। नमस्कार नमस्कार Yes, I can hear you आवाज now. आवाज आ रही है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ रही है सर, जबरदस्त। सर राहुल गांधी जी बोलते हैं और कांग्रेस बोलती है कि भारत ने ईरान को धोखा दे दिया, भारत ने ईरान को अबेंडन कर दिया। अब नाउ सर ईरान इज अटैकिंग एवरीबडी। ईरान जो है सऊदी अरेबिया पे अटैक कर दिया, कतर पे कर दिया, बाकी सब जगहों पे कर दिया। मैं मानता हूं किसी देश को कोई हक नहीं होना चाहिए कि कौन से देश में कौन सी सरकार होगी। अमेरिकी जो हैं वो क्या समझते हैं अपने आप को, मुझे मालूम नहीं है। व्हाट मिस्टर ट्रंप इज डन इज आई थिंक कंप्लीटली इनडिफेंसिबल। ईरान के ऊपर आप ऐसे हमला कर रहे हैं ताकि जैसे आप तय करेंगे कि भाई आप यहां पे सरकार होगी। लेकिन जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत ने सिर्फ ये कहा है, अभी जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो स्टेटमेंट आई है कि भैया शांति से काम लीजिए, बातचीत जो चल रही थी उसको बढ़ाइए और हॉस्टिलिटीज बंद कर दीजिए। अब इसमें क्या तकलीफ क्या है सर, बताइए युवराज सिंह जी प्लीज। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। मेरा जो मैं सिंपल अपनी बात की शुरुआत सिर्फ एक क्वेश्चन के साथ करना चाहता हूं, और क्वेश्चन मेरा ये है कि भारत का स्टैंड क्या है। भारत ईरान के साथ खड़ा है या ईरान के खिलाफ खड़ा है? हर किसी देश की एक फॉरेन पॉलिसी होती है, और इस समय भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है पूरी सी कोलैप्स कर चुकी है। कोई डायरेक्शन नहीं दिख रही है उसकी कि वो इस फॉरेन पॉलिसी में कर क्या रहे हैं। सीधी बात है, लड़ाइयां चलती थी, लड़ाइयां चलती हैं, लड़ाइयां चलती रहेंगी, लेकिन उन लड़ाइयों को लड़ने का भी एक तरीका होता है। कोई भी मजबूत देश किसी दूसरे कमजोर देश के सबसे बड़े नेता को बिना वार्निंग किए डायरेक्ट मार दे, ये एक आतंकी घटना है और जिसका विरोध पूरी तरह से होना चाहिए। अगर हम नैतिकता पे देखें तो नैतिकता के आधार पर भारत ने पूरे विश्व को हमेशा एक राह दिखाई है। तो इसी नैतिकता के आधार पर, क्योंकि ये अमेरिका और इजराइल ने गलत किया है, हमें लगता है कि भारत की सरकार को इस समय अपना एक क्लियर स्टैंड लेने की जरूरत है। आई वांट टू आस्क यू युवराज सिंह जी, जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, मोदी जी ने नेतन्याहू जी से बात किया, उन्होंने कहा पीस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। पीस आपको तलाशना पड़ेगा, आपको पीसफुली इस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा, एग्रेशन इज नो वे। जो आप कह रहे हैं, मोदी जी ने नेतन्याहू जी से आज ही बात की, उन्होंने बहरीन से चीफ से बात की, उन्होंने यूएई के हेड से बात की, उन्होंने सऊदी अरेबियन चीफ से बात की। तो एक नेता है बीजेपी का कहना है कि दोनों पार्टी से खुल के बात कर सकता है, खुल के बात करते हैं और कहते हैं कि पीस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। डोंट यू एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ मोदी जी, वेयर बीजेपी सेज कि एक ही लीडर है तो दोनों पार्टीज को बात करके टेबल पे लेके आ सकते हैं, ऐसे वार्तालाप चल रहा है। हाउ डू यू सी दैट युवराज सिंह जी? बात मोदी जी की लीडरशिप की नहीं है, बात भारत के स्टैंड की है कि भारत को विदेश में कितना सम्मान मिल रहा है। मोदी जी 2 दिन पहले इजराइल से होके आए हैं, भनक तक नहीं लगी उन्हें इजराइल में क्या होने वाला है। ईरान को भारत का दोस्त कहा जाता है। आप इजराइल से होके आए हो और जैसे ही आप वहां से वापस आए, इजराइल ने आपके दोस्त पे हमला कर दिया। आपका स्टैंड क्या है? मैं तो कहता हूं चलो आप बोलिए ना, या तो आप ईरान के खिलाफ हो सकते हैं, ईरान के साथ हो सकते हैं, आप स्टैंड क्लियर करिए। देखिए, हर जगह घुसने से जगह नहीं बनती है, हर जगह घुसने से सम्मान नहीं बनता है। सम्मान के लिए आपको एक अपना नजरिया देना पड़ता है, अपना रोड मैप क्लियर करना पड़ता है कि मेरा रास्ता ये है और मैं यहां चल रहा हूं। अगर इतना ही नेतन्याहू जी अगर उन्हें मानते थे तो आप बताइए ना कि नेतन्याहू जी ने 2 दिन पहले क्या उन्हें भनक तक नहीं लगने दी? और अगर नहीं लगने दी तो फिर किस तरह की दोस्ती है ये? आप किस तरह का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? जी, लेकिन जहां तक भारत का प्रश्न है, फॉर एग्जाम्पल जब गल्फ वॉर हुई, पहला जब अटैक हुआ इराक पे, फिर दूसरी बार किया इराक पे अटैक, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, अगर आपको याद होगा। इंडियन पार्लियामेंट इटसेल्फ हैड पास्ड अ रेजोल्यूशन कंडेमिंग द अटैक। सीधी साधे तौर पर पूरे संसद ने यह कहा था कि यूनिलैटरली बिना यूएन रेजोल्यूशन के
आप किसी देश पर ऐसे हमला नहीं कर सकते। लेकिन साथ में ये भी क्लियर कर दिया था पहले इंदिरा जी ने और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2003 में, यानी अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में, कि देखिए साहब, वी विल नॉट सेंड ट्रूप्स, हम लोग भारतीय सैनिक वहां नहीं भेजेंगे आपके साथ, और ना ही हम भारत की धरती को इस्तेमाल करने देंगे आपके लिए। दिस हैज बिन इंडिया स्टैंड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अभी क्या हुआ है कि ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टैंड सरकार ने नहीं लिया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय सरकार ने, युवराज सिंह यादव जी, अभी सिर्फ ये स्टैंड लिया है कि भैया शांति से काम कीजिए, लड़ाई मत कीजिए, वगैरह वगैरह वगैरह, जो नॉर्मल लोग बोलते हैं। तो कांग्रेस अभी क्या चाहती है? कांग्रेस क्या चाहती है कि भारत का स्टैंड क्या हो, ये तो बताइए ना युवराज सिंह जी, प्लीज। नहीं, मैंने पहले बोला, शायद आपको क्लियर नहीं हुआ, मैंने क्लियर बोला पहले कि अगर किसी देश को बिना युद्ध की वार्निंग के उसके सर्वोच्च नेता को कोई मार देता है, ये आतंकवादी घटना है जी। और इस तरह की बर्बरता पूर्वक घटना में भारत को जो अन्याय कर रहा है उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए, सीधा स्टैंड है। राइट, सो डॉक्टर अविरल मलिक फ्रॉम द बीजेपी, वेलकम सर, नमस्कार, जय सिया राम। आप शो में वापस आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार युवराज सिंह यादव जी कांग्रेस के हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं कब आपको इंट्रोड्यूस करा दूं अगर आप नहीं जानते एक दूसरे को तो अविरल मलिक साहब ये बताइए, अली खामेनी साहब, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, उनको, उनकी हत्या कर दी गई, कत्ल कर दिया गया उनका। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे ईरान के, उनका भी कत्ल कर दिया गया। जो रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ हैं, उनका भी कत्ल कर दिया गया, और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है अमेरिका में और बाकी हर जगह पे। ट्रंप साहब जो हैं, बिन्यामिन नेतन्याहू साहब जो हैं, वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि देखिए हमने कितना बड़ा काम किया। सर, भारत का ज्यादातर पारंपरिक तौर पर भारत का यह स्टैंड रहा है कि यूनिलैटरली कोई भी देश ये तय नहीं कर सकता कि कौन से देश में किसकी सरकार रहेगी। यहां पर मोदी सरकार ने ये तो कहा है कि भाई बातचीत के द्वारा इसको हल कीजिए, लेकिन अली खमेनी साहब की जो हत्या है उसको कंडेम नहीं किया है। डॉक्टर मलिक साहब, अरे सवाल सुन के कहां चले गए? हाँ बोलिए बोलिए सर, बोलिए बोलिए। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से ईरान का, और पर्टिकुलरली अगर इस पे गहनता के साथ चर्चा कर ली जाए, मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही निंदनीय है, और हम शांति और अमन पसंद लोग हैं, इसमें किसी रूप में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ह्यूमैनिटी सर्वोपरि है, मानवता सर्वोपरि है, और निश्चित रूप से मानवता के आधार पर चलने वाले लोग पूरे विश्व में हैं, और निश्चित रूप से मानवता को संरक्षित करना, मानवता को सुरक्षित करना, यही हमारा एक तरीके से प्रमुख तौर पर कर्तव्य रहा है, और निश्चित रूप से इसी के आधार पर हम चलते रहेंगे। ये हमारा स्पष्ट मानना है। हम ह्यूमैनिटी को फॉलो करने वाले लोग हैं, मानवता को फॉलो करने वाले लोग हैं, मानवता के आधार पर चलने वाले लोग हैं, और उसके साथ साथ किस प्रकार से वैश्विक शांति हो, इसको आगे, इस विचार को बढ़ाने वाले लोग हैं। इसमें किसी रूप में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय किसी प्रकार की इस तरीके की जो घटना होती है, निश्चित रूप से विश्व में एक तरीके से अशांति का माहौल बनता है, और किसी की हत्या कर दिया जाना, किसी को मार दिया जाना, ये पूर्ण रूप से गलत है, पूर्ण रूप से दुखद है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय अमेरिका का, तो वेनेजुएला वाली घटना सामने आई थी, उस पर बिल्कुल हमारा स्पष्ट मानना है, किसी को कहीं से पकड़ लो, किसी को अगवा कर लो, किसी को मार दो, तो ये किसी रूप में स्टैंड नहीं हो सकता, और युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध किसी रूप में नहीं होना चाहिए। भारत किसी प्रकार से युद्ध का पक्षधर न था, न है, न रहेगा, हमारा स्पष्ट मानना है। और एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी इंडिया की रूप से मजबूत है, आज की हमारी डिफेंस पॉलिसी मजबूत है, और हमारा विदेश सचिव अभी म्यूट नहीं है ना? जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल। डॉक्टर अविरल मलिक जी है ना भैया? डॉक्टर अविरल मलिक जी, वेयर खमेनीज assassination has not been condemned by Prime Minister Modi, जैसे युवराज जी कह रहे थे, मोदी साहब ने कंडेम नहीं किया इनके असैसिनेशन को, खमेनी साहब के, बट मोदी साहब ने कंडेम किया, बहरीन पे अटैक को कंडेम किया, सऊदी अरेबिया पे अटैक मोदी साहब ने कंडेम किया, यूएई पे अटैक हो गया, दुबई में अटैक हो गया, मोदी साहब ने कंडेम किया, इन सब से मोदी साहब ने बात किया। तो ये क्या इंडिया का स्टैंड दर्शाता है कि इंडिया कहां पर है इस देश? मोदी साहब कहां पर है? मोदी साहब यहां पर कंडेम किया अटैक, बट ईरान के जितने टॉप लेवल के लीडर्स को मार गिराया, असैसिनेट किए, मोदी साहब ने एक शब्द नहीं कहा।
So we made a stand clear without talking about it? Dr. Ravi नहीं, Rajamouli. देखिए, ये तो नंबर एक, ये इंटरनल पॉलिटिक्स का मुद्दा भी नहीं है। ये इंटरनल पॉलिटिक्स, इंडिया की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, इसका उससे लेना देना भी नहीं है। दूसरी चीज ये है, इसमें विवाद क्रिएट करना भी ठीक नहीं है। और नंबर तीन, मैं इस चीज को स्पष्ट कर देता हूं, जहां तक विषय एक तरीके से कंडेम करना और एक तरीके से दुख प्रकट करना, तो निश्चित रूप से हम शांति के पक्षधर थे, हैं और सदैव रहेंगे। हमारा स्पष्ट मानना है, शांति सर्वोपरि है और शांति के आधार पर ही पूर्ण रूप से मानवता को किस प्रकार संरक्षित किया जाए, सुरक्षित किया जाए, इसकी हम चिंता करते रहे और भविष्य में भी करते रहे। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं अविरल मलिक साहब, शायद आप इसका जवाब ना दे पाएं। अगर आप नहीं दे सकते तो ना दीजिए, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आई डोंट वांट टू एम्बैरेस यू। अगर आपको एम्बैरेसमेंट लगे, मुझे तो लगता है कि बहुत बढ़िया चीज़ हुई है। जब मोदी साहब इजराइल में थे तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एग्रीमेंट्स वगैरह साइन करी, FTA साइन किया, बहुत कुछ किया, सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया, आयरन डोम और आयरन बीम, द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो गोना टेक प्लेस, विच इज़ रियली ट्रूली वंडरफुल। खबर ये आ रही है, इट इज़ अनकन्फर्म, खबर ये आ रही है कि मोदी साहब और बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप साहब के बीच में करार हुआ। मोदी साहब को मालूम था कि ईरान के ऊपर अटैक होने वाला है और उन्होंने ये कहा कि यार देखो, चाबहार पोर्ट जो है वो हम लोगों ने बनाया है, हमारी ना जाने कितनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उसमें इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम डॉक्टर मनमोहन सिंह टाइम। आपको याद होगा, चाबहार पोर्ट का जो प्रोजेक्ट है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्टार्ट किया था और अभी भी वो हम लोग उसको मैनेज कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा था आप जो मर्जी करें लेकिन उधर अटैक मत करें, और अभी तक एक भी मिसाइल चाबहार पोर्ट के ऊपर दागा नहीं गया है। तो जो मैं बोल रहा हूं क्या वो सही है या गलत है, आप बताएं, अगर आपको नॉलेज है तो बोलिए सर। जी, देखिए, ऑफिशियल सूचना इस प्रकार की अभी कोई इस प्रकार से नहीं आई है कि ऑफिशियल सूचना है इसकी। बिना ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन के मैं इस पर कुछ कहूं वो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से आपके सूत्र हैं, आप सूत्रों के अनुसार, सूत्रों के आधार पर जो भी कह रहे हैं वो आपकी अपनी निश्चित रूप से पुष्टि है। जी, लेट मी गो अक्रॉस टू मुकेश गांधी साहब। मुकेश गांधी साहब फ्रॉम द एनसीपी, अजीत दादा पवार। मुकेश गांधी साहब नमस्कार, कैसे हैं सर? वेलकम बैक सर, एंड वंस अगेन या थैंक यू। ऑल्दो बिलेटेड 4 के 5 दिन हो गए हैं, आपको एक बार फिर जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। योर बर्थडे वाज अबाउट 4 days ago. Happy birthday sir. And we are wishing you officially now on the channel. Thank you so much sir for coming. Happy birthday, Mr. Gandhi. सर गांधी साहब ये बताइए सर, 2 चीज़ें हैं। क्या है कि एक जो स्टोरी है मेरी समझ में बहुत बड़ी स्टोरी है, वो दब गई है। क्या है कि इसके चक्कर में, और वो क्यों दबी है, उसके पीछे भी एक कंस्पिरेसी थ्योरी है कि एप्स्टीन फाइल्स वो क्या है कि वो दबाना चाहते थे, ये करना चाहते थे, वो करना चाहते थे, इसलिए इजराइल और USA और सऊदी अरेबिया तीनों ने मिलकर के ये तय किया कि ईरान के ऊपर अटैक कर दीजिए, क्योंकि अभी तक वी वर वॉचिंग एप्स्टीन रेवलेशंस on all American television channels. Now we are watching Iran explosions, not revelations. As a result of which, the entire story has shifted. The entire narrative has shifted. After Bill Gates apologized for his involvement with a couple of Russian girls through Epstein, after Hillary Clinton and Bill Clinton, deposed in front of the Congress in camera, of course, we don't really know what they said. Suddenly, this whole thing is shifted because now the demand was growing that Mr. Trump should come and depose in front of a committee and tell us really what's going on. To do that, we started 2 wars. 2 युद्ध शुरू हुए दुनिया में। दूसरे युद्ध के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। पाकिस्तान declared war on Afghanistan, Iran, Israel and USA declared war on Iran. How do you look at that, sir? Please. मुकेश गांधी साहब। हमारे हिंदुस्तान में होली आने से पहले ही विश्व में बहुत बड़ी होली हो गई है। मतलब होलिका दहन हो गया पूरे विश्व में। ये होली, अरे यार, वो होली नहीं है, HOLLY होली नहीं है, पर ये विश्व युद्ध की आग है जी। ये आने से पहले मैं एक बात हिंदुस्तान के लोगों को कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग अपने ही दुखों के गीत गाते हैं कि दिवाली हो कि होली हो सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती हरदम के जो जलती चिता पर बैठकर बीना बजाते हैं जी। आज हमारे मोदी जी जो है वो चारों तरफ आग लगी है, फिर भी अपनी सरस्वती वंदना करके अपनी धैर्य से पूरी परिस्थिति का निरीक्षण करके शांतपूर्ण से आज मोदी जी जिस तरह से विश्व के परिप्रेक्ष्य के अंदर इतने बड़े वॉर टाइम के अंदर जो अलग अलग प्रकार से स्टैंड ले रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, शांति दूत बनकर के
बुद्ध के विचारों का प्रचार कर रहे हैं, शांति का, वो जबरदस्त प्रशंसनीय है। अब बात ऐसी है कि इजराइल जो ईरान है वो 1970 तक एक बहुत बड़ा खुला देश था, और 1979 के बाद में वहां एक मोमेडन माने मुस्लिम कल्चर का देश बनने की शुरुआत कर दी, खामेनी के कल्चर के अंदर आ गई। पहले वहां की कॉलेज की लड़कियां कॉलेज में खुली घूमती थी, फिरती थी, डॉक्टरेट करती थी, दूसरी यूनिवर्सिटी में जाकर के टीचिंग प्रोफेशन करती थी। इतना वहां का एक प्रगतिशील समाज खड़ा हुआ था। पर खामेनी के आने के बाद में एक पूरा एक अलग टाइप का इस्लामाबाद वहां खड़ा कर दिया, और उसके कारण पूरा ईरान का पूरा कल्चर चेंज हो गया और खामेनी का प्रभुत्व बढ़ गया। खामेनी ने प्रगति की। एक्चुअली मेरे हिसाब से मैं आपके साथ एक बात में सहमत हूं कि ईरान से हमको कोई तकलीफ नहीं थी। खामेनी हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं थे, शुरू में थे, पर बाद में वही खामेनी ने हमारे साथ में करार किया और हमारा 70% पेट्रोल जो था, जो हमारा ऑयल है, वो ऑयल हमारा 17% हम ईरान से इंपोर्ट भी करते थे। हमारे पोर्ट में भी हमने उनके पोर्ट में भी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने भी हमारे ओएनजीसी के प्लांट को बहुत तरफ से मदद की। तो हमारा तो खामेनी के साथ में कोई विरोध नहीं था, हमारा तो साइलेंट था। हमारा इंडिया पाकिस्तान का जब वॉर हुआ तो भी ईरान ने कोई ऐसा एग्रेसिव स्टैंड नहीं लिया, खाली पाकिस्तान के समर्थन में रहे, पर हिंदुस्तान के अलग भी नहीं गए। तो खामेनी का विरोध करने का जो हिंदुस्तान में माहौल बना है वो सुन्नी और शिया मुसलमानों के विद्रोह की बात है, उनके झगड़े की बात है। हमारे हिंदुस्तान में भी जो मुसलमान भाइयों ने किया है वो शिया मुस्लिम है। जैसे पॉप पॉल क्रिश्चियन का बहुत बड़ा गुरु है, वैसा खामेनी भी शियाओं का एक बहुत बड़ा गुरु है, गुरु था। तो वो गुरु के जाने के बाद में होगा ही कि हिंदुस्तान होगा या विश्व में जहां जहां भी शिया मुस्लिम बसते हैं, तो उन्होंने अपना विरोध को प्रकट किया है, पर कोई तोड़फोड़ नहीं की है। उतना हमारे देश के लिए अच्छी बात है। जैसे कांग्रेस स्पोक्स पर्सन युवराज सिंह यादव जी ने कहा, इंडिया का स्टैंड क्या है? क्या मोदी साहब ने वो स्टैंड क्लियर कर दिया? 2 days before the war he goes to Israel and he also condemns terror, बोले कि zero tolerance to terror। मोदी साहब क्या किधर इशारा दे रहे थे? हमस पे इशारा दे रहे थे, हिजबुल्लाह पे इशारा दे रहे थे, ये कह रहे थे कि टेररिज्म, जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म फ्रॉम वेयरएवर इट कम्स। और ये ईरान के जितने सीनियर लीडर्स है, उनके असैसिनेशन के बारे में मोदी साहब ने कंडेम नहीं किया। बट ड्रोन अटैक्स ऑन यूएई, ड्रोन अटैक्स ऑन सऊदी अरेबिया, ड्रोन अटैक्स ऑन कटार, सबका उन्होंने विरोध कर दिया, कंडेम किया। तो हाउ डू यू सी, हैज मोदी साहब मेड हिज स्टैंड क्लियर अगेंस्ट हमस, हिजबुल्लाह, अगेंस्ट टेरर? किस प्रकार से देखते हो गांधी साहब? सर, मोदी जी ने जो स्टैंड लिया है वो बहुत ही सही स्टैंड लिया है। ईरान अपने करतूतों से आज इजराइल के अंदर और इजराइल में भी इजराइल और मोसाद ने मिलकर के पूरी जो उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई, और वो स्ट्रेटेजी के कारण आज इतना बड़ा बॉम्बार्डमेंट ईरान के इसके ऊपर जो गिरा, आज कितना बड़ा बॉम्बार्डमेंट हुआ। आपको मालूम होगा कि ये जो बॉम्बार्डमेंट हुई, वो बॉम्बार्डमेंट 6.6 से 7 मीटर लंबी उनकी हाइट थी और 1300 केजी का उसका वेट था, और ऐसे 30 बॉम्ब्स उनके ऊपर सर्च करके गिराए गए। तो माने ये कितना बड़ा प्लानिंग मोसाद का और इजराइल का था कि जिसने ये काम किया। तो मतलब क्या है कि इजराइल, देखिए सुन्नी शिया का झगड़ा है। एक तरफ में सुन्नी मुस्लिम देश है, वो सारे इजराइल और अमेरिका के साथ में है। तो अभी क्या है कि मोदी जी ने कंडेम तो किया ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है, पर साथ में आज दुबई में, यूएई में और जितने भी हमारे अलग अलग स्टेट है वहां के, अबू धाबी, ये वो सब वो सभी जगह पे हमारे लाखों हिंदुस्तानी लोग काम कर रहे हैं। उसमें हिंदू से ज्यादा मुस्लिम भी है, तो उनको बचाने का उनको काम होगा,
तब उनके लिए सहानुभूति सर, आप कहाँ बताना खड़े हैं? ये तो बताओ ये मुकेश मोदी गांधी जी जी। का राष्ट्र धर्म है, तो वो कोई उन्होंने गलत नहीं किया। मुकेश गांधी जी, आपसे सवाल है, व्यक्तिगत सवाल है, आप खुद कहाँ खड़े हैं? आप ये बताइए। आपकी पार्टी तो छोड़िए, आप तो वैसे भी मोदी जी के स्पोक्स पर्सन है। अजीत दादा हाँ, पवार की है पार्टी में तो आप वैसे ही ही। हैं। असल में तो आप बीजेपी में है ना। आप ये बताइए कि आप कहाँ खड़े हैं? डू यू सपोर्ट इजराइल एंड यूएसए एंड सऊदी अरेबिया फॉर अटैकिंग ईरान? आर यू सपोर्टिंग देम? क्या ठीक ठीक से है, पूछिए। ये बात सामने आ गई। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। तो युवराज सिंह जी, युवराज सिंह यादव जी, सीधी सादी बात हो गई। मेरा ये कहना है कि आज तक भारत में ऐसा हुआ नहीं है। पारंपरिक तौर पर भारत ने हमेशा कोई भी हिंसात्मक गतिविधि कहीं पर भी हुई है उसको कंडेम किया है। फॉर एग्जाम्पल, अक्टूबर 7, 2023 पर जब हामस ने एक टेररिस्ट अटैक किया इजराइल पर, जब 1200 बच्चों को मार दिया गया, बेरहमी से काटा गया, औरतों के साथ, बच्चों के साथ बलात्कार किया गया, भारत ने उसको कंडेम किया। उसके बाद इजराइल ने गाजा के ऊपर जो बम्बार्डमेंट करी, इतने ज्यादा लोगों को मार दिया गया, भारत ने उसको कंडेम किया। भारत ने इराक के ऊपर जब हमला हुआ था और सदाम हुसैन के साथ जो कुछ हुआ, उसको फांसी दे दी गई, तब भी भारत ने कंडेम किया। अब क्या भारत बदल गया है सर? देश बदल रहा है ना अब तो। युवराज सिंह जी प्लीज बोलिए। देखिए सर, मैं चाह रहा था कि कोई ना कोई प्रवक्ता जो बीजेपी से है या बीजेपी के गठबंधन है, कोई ना कोई जरूर जवाब देगा। आपने भी बहुत बार पूछने की कोशिश की कि आपका स्टैंड क्या है। आज तक जब से ये चीजें शुरू हुई हैं, तब तक किसी भी प्रवक्ता ने कोई भी लाइन नहीं ली है। इसका मतलब क्या है? सर लाइन ऊपर लिए ना से- उन्होंने, मुकेश गांधी ऊपर साहब ने से- बोला है। मुकेश गांधी ऊपर साहब ने से- बोला, यस, उन्होंने क्लियर कट बोला, यस आई सपोर्ट इजराइल एंड यूएसए अगेंस्ट ईरान, बोला है सर। नहीं बोला, शायद आप अभी पूछिए, बोला है आप सर, पूछिए। बोला है उनके पूछिए, सामने आप बोल रहा हूं, ही विल नॉट कॉन्ट्रडिक्ट मी, ये सेट सो। आप बोलिए सर। पूछिए ना, दोबारा पूछिए आप। जी जी, आप फिर ये सेट सर, सो। मैं फिर सर से मैं आपको कहता बोल रहा हूं हूं ना, ही हैज नॉट कि डिनाइड। इजराइल और यूएस ने और मोसाद ने मिलकर के जो ईरान के ऊपर हमला किया है, वो ईरान के ऊपर हमला नहीं किया है, पर वहां के जो आतंकवादी अड्डे हैं जो खोमेनी चला जी, रहा जी, था, जी, जी। उसके ऊपर हमला हुआ है। वंडरफुल, सो यू हैव गॉट योर आंसर सर। ये आप हमले बोलिए युवराज सिंह हमले यादव का जी, बोलिए। हमें let समर्थन him करना speak. चाहिए। Let him और speak, sir. शिया मुस्लिमों को अगर कुछ धक्का लगा है तो उनको मैं यही कहना चाहता हूं कि आज सद्बुद्धि से, अभी ये हुरों की परियों के साथ में हमको मोक्ष मिलेगा, ये मिलेगा, सर, वो शिया ने मिलेगा, वो कभी फिलॉसफी शियाओं ने छोड़ हिंदुस्तान दीजिए। पे अटैक नहीं किया। आज देश से आतंकवाद मिट रहा है सर, उसके लिए ईरान ने फेयरवेल कीजिए। सर, विद रिस्पेक्ट सर, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, यू आर अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। युवराज सिंह जी, ये रिमाइंड करना हमारे दर्शकों को बहुत जरूरी है कि भारत में जो भी आतंकवादी हमले हुए हैं वो कभी ईरान से उत्पन्न नहीं हुए हैं। ईरान का कभी सपोर्ट नहीं हुआ है उनको, आज तक नहीं, नॉट इवन वन इंसिडेंट। अब आप बोलें सर। युवराज सिंह जी प्लीज बोलिए। मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, मैं बिल्कुल क्लियर करता हूँ। देखिए, मैं कहता हूँ कि अभी भाई, मैं नाम नहीं जानता है, मुकेश गांधी साहब, मुकेश गांधी। ओके, गांधी साहब जो है, गांधी साहब ने बिल्कुल कहा कि हम आतंकवादी जो अड्डे हैं उन पे हमला कर रहे हैं। तो क्या ये इनकी सरकार में इतनी हिम्मत है कि कह सकते हैं कि ईरान जो है वो आतंकवादियों को पनाह देता है? जी, क्या इनका ये कहना है? मैं तो इसलिए बार बार पूछ रहा था कि शायद ये थोड़ा बहुत पढ़ के आएंगे और पढ़ने के बाद फिर जवाब देंगे। मैं बताता हूँ, एक घटना है 1997 के आसपास की, और जब पूरे यूरोपियन कंट्री कश्मीर के मामले में पूरी मुस्लिम कंट्री को इकट्ठा करके भारत पर दबाव बना रही थी, और यूएन में एक प्रस्ताव लाया गया जिससे भारत की जो फंडिंग है वो रुक जाए, और जब आर्थिक चोट होगी तो देश काफी पीछे चला जाएगा। और तब ईरान ने भारत का खुल के समर्थन किया, और जिससे वो प्रस्ताव रद्द हो गया, और प्रस्ताव रद्द होते ही भारत पे कोई भी आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगा। इसलिए कहते हैं कि भारत और ईरान एक पारंपरिक दोस्त है। और अभी जब मोदी जी गए थे वहां पे, तो ये हमारे भाई, कम से कम मोदी जी का ही वीडियो देख लें। मोदी जी ने कहा था कि भारत और ईरान की दोस्ती इतिहासों में दर्ज है, बहुत पुरानी दोस्ती है, आप देख लीजिए, कहो तो मैं भेज दूंगा आपको। मोदी जी कह रहे हैं कि भारत और ईरान दोस्त है, लेकिन मजबूरी है कि अपने दोस्त की भी साइड नहीं ले पा रहे हैं। और तब जब उस दोस्त के साथ गलत हुआ है, तब जब उसके दोस्त के जो देश है उसके सबसे बड़े नेता को बिना वार्निंग के मार दिया गया है,
तो जब आप अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं रखते हैं, तो मुझे लगता है कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है पूरी तरह से चरमरा चुकी है। जी, तो आप क्या चाह रहे हैं सर? मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में जो आज चेंज सिचुएशन है भारत को लेकर के, आप क्या चाह रहे हैं? कांग्रेस क्या चाह रही है कि आज की तारीख में हम लोग ईरान के साथ खड़े हो जाएं? आप बताइए ना प्लीज। मेरा सीधा कांग्रेस पार्टी का सीधा मानना है कि जहां पे अन्याय हो, इस देश की सरकार मजबूती से अन्याय के खिलाफ खड़ी हो, कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, भले ही उससे भारत का आर्थिक नुकसान हो जाए, क्योंकि उससे आर्थिक नुकसान तो होगा ही। अगर आज हम ईरान के साथ खड़े हो गए तो एक बार फिर ट्रंप सरकार को यही लगेगा कि हम लोग उनके खिलाफ हैं, सऊदी अरेबिया को यही लगेगा हम उनके खिलाफ हो गए, इजराइल को लगेगा हम उनके खिलाफ हो गए, पूरे यूएई को लगेगा, यानी दुबई, अबू धाबी, ओमान, कतर, नॉट ओमान, कतर, सबको यही लगेगा, कुवैत, सबको यही लगेगा हम उनके खिलाफ हो गए। आप बोलिए ना सर प्लीज। सीधी बात करिए ना आप फिर विश्वगुरु जो आप कहते रहते हैं ना, उसकी डींगे हाँकना बंद करिए। सर विश्वगुरु तो है हिंदुस्तान, विश्वगुरु तो शुरू से ही था। अरे क्यों आप नहीं, पर आप सुनिए एक ना। बात सुनिए सर कि फिर आप जो है नहीं, मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया किसी को, मैंने बीच में किसी को इंटरप्ट नहीं किया। आप प्लीज मुझे मुकेश गांधी साहब उनको बोलने दीजिए, पहली बार आए सर। मुकेश गांधी साहब प्लीज, सर प्लीज, दिस इज अनफेयर। मुकेश जी, गांधी साहब दिस इज अनफेयर सर, प्लीज लेट हिम स्पीक सर। बोलिए ना युवराज जी, आप बोलिए प्लीज, प्लीज गो। देखिए है क्या, भाजपा और भाजपा के संगठन के जितने भी नेता हैं वो सिर्फ मन की बात करना जानते हैं, दूसरों की बातों को सुनना उन्होंने सीखा नहीं है, ना ही उनके नेताओं ने। सर जवाब देना सर, मेरे सवाल का जवाब देना। मैं आ रहा हूँ उस पे ही आ रहा हूँ। जी जी प्लीज गो, प्लीज मैं उस पे ही आ रहा हूँ। हाँ प्लीज। आप अगर ये सब सोचेंगे तो आप जो विश्वगुरु वाली झूठी छवि को लेके चलते हैं, आप पहले उस विश्वगुरु की छवि को आप हटाइए और आप कहिए कि भारत की कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है, सिर्फ बाकी आसपास के देशों को खुश करने के लिए जो स्ट्रेटजी होगी वो हम बनाएंगे। ना ही हम किसी पे स्टैंड ले सकते हैं, ना ही किसी के साथ खड़े हो सकते हैं। अमेरिका को खुश करने के लिए हम उसके पिछलग्गू बन सकते हैं। अगर ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है तो आपको फॉरेन पॉलिसी मुबारक हो। और रियलिटी आपने ये बात सही की कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को इतना क्लियर किया आपने। बट युवराज जी, द हमास अटैक ऑफ 2023, why is the Congress not condemning it openly? जो इजराइलीज पे हमास का अटैक हो गया, हेजबोल्ला जिस प्रकार से सऊदी अरेबिया पे लगातार अटैक्स हो रहे हैं, सऊदी के खिलाफ एक जंग चल रहा है, इस चीज को, दिस ऑल एक्ट्स ऑफ टेरर। यहां पर हमने ऑपरेशन सिंदूर में मोदी साहब ने कहा कि घर में घुस के मारेंगे, हम जहां पनाह देते हैं आतंकवाद उसको टोटल डिस्ट्रॉय करेंगे, नष्ट करेंगे। तो हमने भी यही कदम उठाया। अगर वो स्टेट्स जो अफेक्टेड है ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज ऑफ हमास एंड हिजबुल्लाह, तो क्या उनका रिटेलिएशन जायज नहीं है? हाउ डू यू सी दैट? आर यू कंडेमिंग हमास और हिजबुल्लाह? मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर से बोल रहा हूं, कहीं भी आतंकवादी घटना है उसका पुरजोर तरीके से विरोध होना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी किसी भी आतंकवादी घटना का समर्थन नहीं करती। So sir, in your opinion, we need to stand with Iran right now. आप समझिए, तो कहीं भी जहां भी अन्याय हो रहा है, जहां पे भी शांति को में बाधा पहुंच रही है, तो एक क्लियर स्टैंड होना चाहिए। आज देश के लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई भारत का स्टैंड क्या है। आज सवाल यही है कि वहां पे जो लाखों करोड़ों लोग भारतीय फंसे हुए हैं, उनकी सरकार के लिए क्या प्लानिंग है, सरकार उन्हें कैसे निकालने जा रही है। लेकिन सरकार के लोगों में किसी के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं है, ना ही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में, ना ही जो वहां के लोग जो फंसे हुए हैं उनको कैसे निकाला जाए, पूरे परिवार जो उनके यहाँ इंडिया में रह रहे हैं आज उन पे क्या बीत रही है, शायद सरकार के पास इसकी कोई चिंता नहीं है। राइट, सो दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, बट द ओनली थिंग इज युवराज सिंह यादव साहब, कि आज अगर हम लोग ईरान के साथ खड़े हो जाते हैं तो दोस पीपल हु आर लिविंग इन द गल्फ विल फील अबैंडन्ड। वो तो बेचारे ये सोचेंगे हमारी सरकार ने हमें छोड़ दिया है, क्योंकि ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? अबू धाबी में, दुबई में, कुवैत में, सऊदी अरेबिया में। उनको तो यही लगेगा ना कि आज ये ईरान के साथ खड़े हो गए, मतलब गुड मॉर्निंग, यहाँ की सरकारें हमारी मदद क्यों करेंगी? अविरल मलिक साहब आप बताएं, कांग्रेस की अगर बात मान ली जाए, मान लीजिए कांग्रेस की बात मान ली जाए, पारंपरिक तौर पर जब भी कोई इस किस्म का एक्शन अमेरिका ने लिया है तो भारत ने उसको कंडेम किया है। फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान के ऊपर,
उसके उसके बाद इराक के ऊपर, उसके बाद सीरिया के ऊपर, उसके पहले लीबिया के ऊपर, हमेशा भारत सरकार ने कहा है भाई ये ठीक नहीं है। लेकिन उस वक्त मैं आपको याद दिला दूं, हमारे दर्शकों को भी याद दिला दूं, उस वक्त जो अमेरिकी प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो ट्रंप नहीं थे, वो काफी अंडरस्टैंडिंग किस्म के लोग थे। वो कहते थे भाई इनका ये स्टैंड है, जाने तो कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज दे डोंट हार्म अस इट इज फाइन। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि भारत को अपनी आर्थिक व्यवस्था अभी देखनी है, भारत को यह देखना है कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया और इजराइल के खिलाफ क्या खड़ा होना भारत के हित में है या नहीं है, या फिर हम ईरान के साथ खड़े हो जाएं और यह कहते हैं तुम्हारी ऐसी जैसी, हमारे साथ ट्रेड करना हो करो, नहीं करना हो मत करो। आप बताइए सर, डॉक्टर मलिक प्लीज। बेखौफ हो गए, जो हमें स्टैंड रखना था वो हमने रखा निश्चित रूप से। और आपने अभी बात की थी जिस प्रकार चाबहार के विषय पे आपने जानकारी भी दी थी, तो मैं समझता हूं वो चीज बिल्कुल स्पष्ट करती है कि विश्वगुरु भारत निश्चित रूप से स्पष्ट तौर पे उसकी जो झलक है वो स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। और उसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अभूतपूर्व नेतृत्व है वैश्विक पटल पे, वो निश्चित रूप से स्पष्ट दिख रहा है कि किस प्रकार से जो आपने चाबहार के विषय पे जो खबर है उस विषय पे जानकारी प्रदान की, तो बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय भारत के स्टैंड का, तो बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल खुला स्टैंड है। हम शांति के पक्षधर थे, शांति के पक्षधर हैं और सदैव शांति के पक्षधर रहेंगे। ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करने का काम हमेशा से भारत ने किया है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का हमने काम किया। अगर कहीं ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन होता है तो उसके हम सख्त विरोधी हैं, इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। और ये हमारी आज हैसियत है, ये मजबूती है भारत की, और निश्चित रूप से भारत बेखौफ होकर स्टैंड लेता, इसमें किसी रूप में कोई इफेक्ट बट नहीं। डॉक्टर अविरल मलिक जी, कैन अ फ्यू कंट्रीज, क्या कुछ देश मिलकर, जैसे यूएस इजराइल है, उनके एलाइज है, ये मिलकर तय कर सकता है कि कौन से गवर्नमेंट फ्रेंडली है, कौन से गवर्नमेंट अनफ्रेंडली है, और अनफ्रेंडली गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करो। अगर जेनजी को भड़का के, वहां के लोगों को भड़का के, विद्रोह करा के अगर सरकार डिस्टेबलाइज नहीं होता, तो यूज ऑफ फोर्स, यूज ऑफ मिलिट्री, यूज ऑफ आर्मी, ये कौन तय कर सकता है कि कौन से गवर्नमेंट ढंग का है, कौन से गवर्नमेंट नॉट फ्रेंडली है, जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर रहे? ये क्या ट्रम्प जी तय करेंगे, इजराइल तय करेंगे, और यू हैव सम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दैट डिसाइड्स दैट दिस लीडर इज नॉट डूइंग जस्टिस टू हिज पीपल? अब ये इन्होंने कैसे, यूएस इजराइल ने कैसे तय कर लिया कि हम डिसाइड करेंगे विच गवर्नमेंट इज फ्रेंडली टुवर्ड्स इट्स पीपल, विच गवर्नमेंट इज डूइंग जस्टिस टू इट्स पीपल? ये कौन होता है? एंड हाउ कैन वी सपोर्ट दिस पर्टिकुलर स्टैंड? ये एग्रेशन। देखिए, निश्चित रूप से अगर इस पे चर्चा कर ली जाए तो वीडियोस बहुत सारी आ रही हैं, आपने सोशल मीडिया पे भी स्क्रॉल करके देखी होंगी वीडियोस किस तरीके की वहां आ रही हैं कि भाई उसके बाद वहां जश्न मन रहा है, जो लोग फ्रीडम की बात करते थे, स्वतंत्रता की बात करते थे। तो निश्चित रूप से उन लोगों का अपना मत हो सकता है, जो वहां के निवासी हैं, जो वहां के रहने वाले हैं, और अपने हर देश का अपना अपना कोई ना कोई विवाद होता है और विवाद हो सकता है। लेकिन दूसरा देश उसमें आके पैर डालने का काम करे या अपने आधार पर हाकने का प्रयास करे किसी मुल्क को, मैं समझता हूं किसी रूप में ठीक नहीं है। या फिर अगर मदद भी की जा रही है बाहर से, वो एक्सटर्नल एफर्ट्स लगा भी रहे हैं, तो कम से कम ये देखना चाहिए कि किसी की हत्या ना की जाए, खून खराबा किसी रूप में ना हो, और उसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्टेड रहे, ये सुनिश्चित करना भी अनिवार्य है। लेकिन आप ये बताइए अविरल मलिक साहब, ट्रंप साहब कहते हैं कि ये ईरान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, अब बाहर आइए और ये सरकार को खत्म कीजिए। आप मुझे ये बताइए, ट्रंप साहब अब तय करेंगे कौन सी जगह पर कौन सी सरकार रहेगी। अगले दिन मोदी जी की शक्ल उनको पसंद नहीं आई, उनका साहब मुझे नहीं पसंद इसकी शक्ल, अगले दिन वो भारत पे अटैक कर लेंगे तो क्या होगा? आप बताइए ना अविरल मलिक साहब। नहीं, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और डोनाल्ड ट्रंप साहब की अच्छी मित्रता है, वो बिल्कुल सर्वविदित है, और उसके साथ साथ अमेरिका भारत का अच्छा मित्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक विषय अमेरिका की क्या राय है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की क्या राय है किसी विषय पे, मैं समझता हूं उस पर चर्चा करने के लिए इसलिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ ना कुछ रोज बयान देते हैं, और कोई ना कोई बयान उन्हें देने की आदत है। जैसे अगर बात करी जाए हमारे इंडिया में, संजय राउत साहब रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने आते हैं हमारे ऊपर आरोप लगाने के लिए, ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप साहब रोज राहुल गांधी जी ने ये कहा है, तरह तरह के आरोप लगा देते हैं। राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि भारत ने ईरान को धोखा दिया है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, राहुल जी का अपना विषय हो सकता है, वो विपक्ष में होने के नाते अपना विषय रखें, उन्हें स्वतंत्रता विषय रखने की, लेकिन जहां तक फैक्ट्स की बात है तो हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है, हम शांति के पक्ष में थे, हैं और सदैव रहे। बट इज द कांग्रेस डूइंग तुष्टिकरण की राजनीति?
क्या ये मौका लेकर कांग्रेस इज डूइंग पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट? क्या कुछ वोटों को बटोरने के चक्कर में, मुस्लिम समाज के वोटर्स को बटोरने के चक्कर में कांग्रेस इज टेकिंग दिस काइंड ऑफ अ स्टैंड? हाउ डू यू से तुष्टीकरण का राजनीति जो बार बार बीजेपी का आरोप है, क्या यह सिद्ध होता है डॉक्टर मलिक? देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति किसी रूप में ना होनी चाहिए, और अगर की जाती है तो उसका जवाब मिलता है 2014, 2019, 2024 तीन लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस हार रही है। और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए विपक्ष की, विपक्ष आज किस स्थिति में, देखिए विपक्ष को चर्चा करनी चाहिए किसान के मुद्दे पे, गांव के मुद्दे पे, गरीब के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, और उसके साथ साथ महंगाई के जो असल मुद्दे हैं, धरातल के मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। और जहां तक विषय चर्चा का, हम हमेशा चर्चा के लिए तैयार रहे हैं और इन्हीं विषयों पर डिबेट होना महत्वपूर्ण है। और अब ये कह दिया जाए कि भाई ये ऐसे हो रहा है, ईरान के बैठक को पकड़ के घूमा जाए इस देश में, तो मैं समझता हूँ वो इंटरनल पॉलिटिक्स का मुद्दा ही नहीं। Right, so let me go across to Mukesh Gandhi. Mukesh Gandhi sir, I expected you would say something about the India-Canada free trade agreement. I expected you would say something about Mark Carney coming over here and saying that Canada will no longer allow its soil to be used by Khalistanis, which is a big achievement, by the way. That's huge. If you contrast this with what Justin Trudeau was saying at that time, this is India-Canada huge. के बारे में जी बोलिए। हाँ, इंडिया कनाडा की जो ट्रीटी का आज मैंने सब टीवी पे जो अहवाल देखा और हमारे दोनों नेताओं की, इंडिया और कनाडा के नेताओं की जो स्पीच सुनी, उससे हमको लगा कि सचमुच कनाडा और इंडिया से एक दूसरों को फायदा तो होगा, पर सबसे ज्यादा तो कनाडा में रहने वाले हमारे हिंदुस्तानियों को इतना फायदा पहुंचा होगा कि नाउ दे आर फीलिंग सिक्योर्ड। बाद में मैंने नहीं तो 30-35 टेलीफोन किए कनाडा में रहने वाले हमारे रिलेटिव्स, पहचान वाले दोस्त हैं ये वो लोगों को, तो दे आर फीलिंग के दे आर वाचिंग ऑन द टीवी एंड दे आर वेरी मच हैप्पी कि मोदी जी हैज डन द ग्रेट वर्क फॉर अस। और आज खालिस्तान की मूवमेंट के ऊपर एक ब्रेक लग गई, ये कोई छोटा काम नहीं है। इसकी तारीफ तो राहुल गांधी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो पहले से ही सिखों के विरोधी है, उनके पिताजी से लेकर के माताजी के तक। वो बात जाने दीजिए, वो बात जाने दीजिए। सर खालिस्तानी ये मत कहिए सर, खालिस्तानी सिख नहीं है। अगर आप असल में उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे, एक झूठ है। हमारे सिख भाइयों को खालिस्तान की मूवमेंट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है जी, किसी को नहीं है। हमारे पंजाब के सिख हो या हिंदुस्तान में रहने वाले हर सिख को, दे ऑल आर अगेंस्ट द खालिस्तानी मूवमेंट। पर खालिस्तानी मूवमेंट करने वाले कनाडा में जो झूठ है, उनको ओवरकम करके कनाडा सरकार ने भारत के साथ में जो रिलेशनशिप बनाई और जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। इससे हमारी अलग अलग फील्ड के अंदर जो डिक्लेयर हुई आज सब ट्रीटी के अंदर, जयशंकर जी के साथ में, पीयूष गोयल जी के साथ में और अन्य मिनिस्टरों के साथ में जितने भी हमारे ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, वो अगर सक्सेस हो जाएंगे और 100% सक्सेस हो जाएंगे, तो इससे कनाडा से भी ज्यादा हमारे हिंदुस्तान को फायदा होगा। One second, Pradeep. The point is over here, you must also thank Ajit Doval and the rest of the intelligence community, because what we have been saying for the last 30 years, let's be very clear, ever since all those Canadian Sikhs, they started, Dr. Jagjit Singh Chauhan and all these fellows, they started talking about the Khalistan movement, तब से हम लोग चिल्ला रहे हैं कि पूरा ड्रग ट्रेड कनाडा में इनके हाथ में है, और भैया इनके ऊपर अगर आप अंकुश नहीं लगाओगे ऐसी की तैसी हो जाएगी। फाइनली वी हैव अ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हु इज लिसनिंग टू अस, एंड फॉर दैट वी मस्ट थैंक मिस्टर ट्रंप। अगर ट्रंप साहब के टैरिफ्स का इतना प्रेशर नहीं होता, ये नहीं होता सर, मैं बता रहा हूं आपको। प्रदीप जी आपको मुकेश गांधी साहब, आज राहुल गांधी जी ने पंजाब में थे, राहुल जी ने कहा कि अगेन द इंडो-यूएस डील इज अ डेथ वारंट फॉर द फार्मर्स ऑफ इंडिया, फॉर द फार्मर्स ऑफ पंजाब। एग्रीकल्चर सेक्टर को कॉम्प्रोमाइज किया गया है। आप यहां के इंपोर्ट्स को आप जीरो टैक्स है, मगर हमारे एक्सपोर्ट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स 18%। ना ये अनुमान लेके बार बार राहुल गांधी जी करना और यूज ऑफ द एडजेक्टिव्स डेथ वारंट फॉर द फार्मर्स, यानी ये अंत है फार्मर्स का। फार्मर्स इन इंडिया विल बी डिस्ट्रॉयड, एग्रीकल्चर विल बी डिस्ट्रॉयड एज पर राहुल गांधी जी। बोलिए मुकेश गांधी साहब। राहुल जी क्या है, नरेशन बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। सचमुच उनको नरेशन का एक बनाने का एक अवार्ड देना चाहिए हम लोग को। आज इतने टाइम तक मोदी जी की गवर्नमेंट ने और स्वयं मोदी जी ने
इंडिया यूएस की ट्रीटी नहीं की, क्योंकि उसमें हमारे एग्रीकल्चर, हमारे फिशरमैन और हमारे सभी वर्गों को, फ्रूट उगाने वालों को, सभी लोगों को पूरा प्रोटेक्शन मिले। मिल्क प्रोडक्ट के ऊपर, हमारे ऊपर फॉरेन से आने वाला सस्ता मिल्क हमें नहीं चाहिए, वो मोदी जी ने देखा। और इतना ही नहीं, मोदी जी ने हमारी यहाँ की हिंदू कल्चर को, वेजिटेरियन कल्चर को भी एडमिट किया था इसमें, कि फॉरेन से आने वाला जो मिल्क है वो मिल्क में नॉनवेज, क्योंकि जो पशुओं को खिलाते हैं खुराक, उसमें गाय को, भैंस को वहां इंग्रेडिएंट जो देते हैं खाने के लिए उसमें नॉनवेज आता है, तो वो वाला मिल्क हमारे इंडिया में नहीं आए। ये भी प्रोटेक्शन उन्होंने सनातन धर्म को, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। और दूसरा कि यहाँ की मिल्क की डेयरियां इतनी हमारे भारत में व्यवस्थित रूप से चल रही है कि आज अमूल की डेयरी आज फॉरेन में भी हो गई है, वहां उसके प्रोडक्ट आज बिक रहे हैं। वैसे डायनेमिक चल रही है, फिर महानंद जा रही है, कितनी कंपनियां, और साउथ की एक दो कंपनियों का नाम मैं भूल गया हूं, वो सारी वहां आज फॉरेन में चल रही है जोर में जी। तो राहुल गांधी का जो नरेशन है वो टोटली रॉन्ग है। हमारे फार्मर अच्छा को सर, ये तो बात हो गई कनाडा की और यूएस डील की। नुकसान राहुल गांधी को हुआ है कि इतनी बड़ी इंडिया यूएस ट्रीटी कैसे हो गई भाई मेरे, ये तो उनका आप ये दुख बताइए है। सर, आप ये बताइए, अभी अभी जो युवराज सिंह जी बोल रहे थे कि भारत को अब फिर या तो ये बोल देना चाहिए कि हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है, हमारी फॉरेन पॉलिसी जो अपॉर्चुनिस्टिक है, ऐसा बोल दीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि आज अगर फॉर एग्जांपल, आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, इफ टुडे यू स्टैंड बाय ईरान, दैट मींस यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट इजराइल, अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अगेंस्ट सऊदी अरेबिया। डू यू थिंक दैट इज वाइज, मुकेश गांधी साहब? नो नो सर, क्या है, इंडिया में नरेंद्र मोदी जी अकेले नहीं है, पर उनके पीछे सारी थिंक टैंक के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स लोग हैं, और किसी के दबाव में आए बिना आज मोदी जी जिस तरह से डिसीजन लेते हैं, आप एक बात देखिए कि अगर ईरान को अगर सपोर्ट होता रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया का, तो वो लोग भी आगे आते थे, पर आज वो लोग भी पीछे हैं, बैकडोर में अभी रशिया ने भी पैसिव है। उन्होंने पहले जो कुछ भी शस्त्र वगैरह देना होगा, उनको इन्फ्लुएंस देना होगा, वो दे दिया, पर इतनी बड़ी घटना होने के बाद में आज चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया भी साइलेंट खड़े हैं। नहीं सर, साइलेंट नहीं है, रशिया इज कंडेम्ड ओपनली। नहीं, कोई बड़ा स्टेटमेंट ऐसा सर नहीं आया फॉरेन है मिनिस्टर लावरोव कि साहब ऐसी इस कोई condemned योजना उन्होंने भाई नहीं बताई है कि अमेरिका और इजराइल के ऊपर हम सामने ये वॉर करेंगे, वो वॉर करेंगे, नहीं, ऐसा और वो कुछ नहीं करेंगे। आप देखना बोलने सर के क्यों बाद करेगा में भी अगर कोई? कुछ आप मुझे किया बताइए, होगा तो। लोग पागल हैं क्या? अपने लोगों की जाने वो जोखिम में क्यों डालेंगे? आप मुझे बताइए ना, क्यों, व्हाई, व्हाट फॉर? बट द फैक्ट इज, एंड दिस मस्ट बी सेड ओवर हियर वेरी वेरी क्लियरली, Hamas, Hezbollah and the Houthis in Yemen, they are all supported by Iran. In fact, Hezbollah, by the way, and this is for all our viewers, and I've said this over here so many times, was created by a resolution of the Iranian parliament in 1984. There's a parliamentary resolution creating Hezbollah, and they said it is dedicated to the destruction of Israel. And we have been against Hamas anyway. Hezbollah और Hamas के खिलाफ right from the time when it was created, including at the time of Rajiv Gandhi ji, we have always condemned Hezbollah because we say we cannot be there with any terrorist organization, and Hezbollah is a designated terrorist organization. So मेरा ये कहना है सर, आज की तारीख में मुकेश गांधी साहब, before I go back to Yuvraj Singh ji, fact is the Iranians have not condemned Hamas. The Iranians have not said we have nothing to do with Hezbollah. They have not said we have nothing to do with the Houthis. So why should we stand with them? आप बताइए मुकेश गांधी साहब। बरोबर है। ये देखिए, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर जो फिनोमेना चल रहा है, और ये जिस तरह से थर्ड वर्ल्ड वॉर की लोग बात करते हैं, पर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है। ये एक अलग कंट्री में एक अलग अलग इश्यू के ऊपर सब इंटेलिजेंस की यूज से, अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंस इसमें यूज हुई है, और वो इंटेलिजेंस का यूज करने के बाद में हमारे यहाँ कहते हैं कोई कि 3 प्रकार की इंटेलिजेंस इसमें यूज हुई है। एक है सिग्नेट, एक है इमिनेंट, माने इंडियन ह्यूमन इंटेलिजेंस है, इमेजिनरी, और एक ह्यूमन है। ऐसी कोई 3 प्रकार की अलग अलग इमेजिनेशंस लेकर के
ये पूरा ईरान के ऊपर वॉर हुआ है, इसके अंदर पूरा वर्ल्ड अभी जो डिवाइड होना चाहिए वो डिवाइड भी इतना नहीं हुआ है। अभी भी सब कंट्री बैलेंसिंग काम कर रही है। Right, so let's I want to answer इसके युवराज बीच में युवराज भारत सिंह जो है, युवराज जी हिंदुस्तान जो है, उनका स्टैंड आज जो भी है वो सही स्टैंड है। युवराज जी, आज राहुल गांधी जी ने कहा कि ये फार्मर्स का डेथ वारंट है, इंडो यूएस डील। उससे पहले इंडो यूएस डील एक जबरदस्त ऐतिहासिक, इंडो यूएस भी ऐतिहासिक था। उसके बाद एआई समिट हुआ, वहां पर आपने शर्टलेस कैंपेन करके, बीजेपी मोदी साहब का कहना है कि पूरे दुनिया में देश का बेइज्जती किया। ना व्हाई डू कुछ भी सम गुड थिंग्स हैपनिंग, कोई अच्छा ट्रेड डील होता हो, वहां कांग्रेस इस प्रकार से डिफेमेटरी कैंपेन, स्लैंडर कैंपेन क्यों चलाते हैं? युवराज राजीव जी एक मिनट राजीव जी जी बोलिए सर। सर मैं 1 मिनट, अभी होली के दर्शन के लिए पूरा फैमिली वेट है। Alright sir, thank you very much for joining us. God bless you. होली मुबारक हो सर। Thank सॉरी you. सर, होलिका दहन में आप किसको जलाने जा रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऑल द बेस्ट ऑफ लक। नहीं, होली में नमस्कार। देखो हम एक ही प्रार्थना करते हैं, श्रद्धा मेधा यश प्रज्ञा विद्या बुद्धि बलंत्यम आयुष्यम आरोग्यम देहि में हव्य वाहनम। हव्यवाहन। प्रार्थना करते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। विशिंग ऑफ होली। युवराज जी, ये विरोध क्यों? फार्मर्स का कौन सा डेथ वारंट? मोदी जी, आरएसएस ने संकल्प लिया है कि हम कभी एग्रीकल्चर सेक्टर का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कभी भी स्मॉल मछुआरों का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, फिर भी आप प्रश्न लेकर शर्टलेस कैंपेन करते हो, देश को बदनाम करते हो। युवराज सिंह जी, अभी बहुत फॉरेन पॉलिसी की बात हुई। फॉरेन पॉलिसी से होते हुए जो भी आपके सवाल है, मैं सबके एक एक करके मैं जवाब देने वाला हूँ। बोलिए सर, बोलिए। देखिए, मैं बताता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी आज इंडिया की पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है। इनकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं बची है। मैं एक एक करके गिनाता हूं। देखिए, पाकिस्तान से हम लोगों की कभी नहीं बनी, चलो छोड़ देते हैं उसको। आज बांग्लादेश से भी आपकी नहीं बन रही है, आज आपका नेपाल से भी आपकी नहीं बन रही है, आज आपकी श्रीलंका से भी नहीं बन रही है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने डायरेक्ट अमेरिका की शरण ले ली, और ये उस दोस्ती में इस हद तक गिर गए कि इन्होंने बोला कि अब की बार ट्रंप सरकार। आप सोचिए कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं और आप किसी भी देश के लिए ऐसा कैसे कह सकते हैं? अगर सरकार वहां किसी दूसरी पार्टी की बन जाती तो देश पर क्या फर्क पड़ता? अब जब वही अमेरिका ने आप पे टैरिफ लाद दिए तो आप फिर चाइना की शरण में जाने लगे। आपको दिखने लगा कि नहीं, हम व्यापार वहां से करेंगे, जबकि आपको पता है कि अगर आज भारत की सबसे बड़ी लड़ाई किसी देश के साथ है तो वो चाइना है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि आपने फॉरेन पॉलिसी पे कभी ध्यान नहीं दिया, कभी आपने उसको गंभीरता से नहीं लिया, और आज आप पूरे विश्व में सिर्फ पिछलग्गू बन के घूम रहे हैं। हर जगह जबरदस्ती जाके फोटो सेशन करवाने से कोई आपकी इज्जत नहीं बढ़ने वाली। आपकी जो रिस्पेक्ट होती है वो आपके डिसीजन से आती है, और हकीकत बात यह है कि गवर्नमेंट के पास डिसीजन मेकिंग पावर है ही नहीं है, वो खत्म हो चुकी है, विजन नहीं है, आप कुछ भी कह लीजिए। अब रही बात आपके सवाल की, एआई समिट की, हकीकत बात यह है कि इस देश में आज तानाशाही चल रही है। कोई सरकार का व्यक्ति लोगों के मुद्दों की बात नहीं करना चाहता। अगर कोई भी इस देश के युवा अपनी बात रखते हैं या बात रखने के लिए कोई मंच ढूंढते हैं तो उनपे आप इस तरह की कार्रवाई करोगे, रात में लोगों को उठा लिया जाएगा। और अगर आपने कोई कार्रवाई भी करी तो उसके लिए कुछ एविडेंस तो दे देते। आज लगभग सारे साथी छूट गए और जो बचे हैं वो भी आने वाले हैं। आपने जो कार्रवाई की थी, न्यायपालिका ने उस कार्रवाई पर जोरदार तमाचा मारा है कि इस देश में अभी कानून का राज है, तानाशाही नहीं है इस देश में। और इस देश की डेमोक्रेसी जो है वो हमें अधिकार देती है कि हम आपकी पॉलिसीज का विरोध करें। पॉलिसीज का विरोध करने का मतलब देश का विरोध करना नहीं होता, आप ये स्पष्ट समझ लीजिए जी। बट जिस इंडिया, आप इस देश का, बीजेपी मोदी साहब का कहना कि जब भी मोदी साहब ने कोई डिसीजन ले लिया वो जनहित में लिया है, देश के हित में लिया है। पिछले 14 साल में जो
आईटी के रिलीफ दिए थे 12 लाख के आसपास, जो कॉमन मैन मिडिल क्लास कंज्यूमर के लिए, मिडिल क्लास के लिए जो रिलीफ दिया था मोदी साहब ने दिया 12 लाख का। जीएसटी का रिलीफ दिया, उससे पूरे ऑनलाइन सेल्स इस प्रकार से बढ़ गए कि लोग देखते रहे कि मोदी साहब ने एक जबरदस्त निर्णय ले लिया। एफटीए डील्स पूरे दुनिया में अलग अलग डेवलपिंग कंट्रीज से जिस प्रकार से किया, वो देश हित में किया। तो हाउ डू यू डाउट मोदी साहब इंटेंशन? दैट्स व्हाट द बीजेपी सेज। मोदी साहब का कहना है। चलिए मैं अभी जो आपने क्वेश्चन किया था मैं उसको ही कंप्लीट करते हुए फिर आपकी बात पे फिर से आ रहा हूं। ये इन्हें तकलीफ है कि युवा कांग्रेस के जाबाज सिपाहियों ने शर्टलेस प्रदर्शन क्यों किया, और वो इनके ईगो को हर्ट कर गया। लेकिन जब इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम के टाइम पे इस तरह के प्रदर्शन किए थे, शायद उस प्रदर्शन को भूल गए। जब इनके मंत्री खुद इनका इस तरह से विरोध करते हैं, हरियाणा वाले विद साहब आप भी जानते होंगे, तो उस पे भी इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस इस देश के लोगों की आवाज बनकर लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करे तो इनकी आंखों में खटकने लगता है। यही प्रॉब्लम है। और न्यायपालिका ने आज दिखाया है कि इस देश में कानून का राज है, तानाशाही का नहीं। अब दूसरी, अब आपकी बात पे आते हैं। आप जो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी इतने सालों से लगे हैं, हाँ मोदी जी इतने सालों से लगे हैं, तो बताइए ना महंगाई कम हुई क्या? मोदी जी कहते थे कि हम आने के बाद महंगाई कम कर देंगे, बताइए ना। मोदी जी कहते कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, हुई क्या अभी तक? मोदी जी कहते थे कि रुपए को हम डॉलर से मजबूत बना देंगे, तो आज रुपए क्या डॉलर से मजबूत हो पाया क्या? बताइए ना। आप मोदी जी कहते थे काला धन लेके आएंगे, कितना कितना मिल गया बताओ? अगर आप दोनों लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख पहुंच गया हो तो हमें भी दे दो कुछ, या हम भी भाई आपके थ्रू को देख लेंगे कहां से रजिस्ट्रेशन कराना है, कहां से नहीं कराना है। ये जितनी बातें मोदी जी ने सरकार में आने के पहले बोली थी, ये सारी बातों पे फेल हुए। आप किसी भी बात पे नहीं टिक पाए। एक भी बात पे अगर टिक जाते तो चलो ठीक है, रुपए की बात नहीं करी, रुपए की भी तो बात कर लो। रुपया, इंडियन रुपी वर्सेस मैंने बोला ये कह के आए थे। आज का रेट है सर, आज का रेट बता दूं मैं आपको, 91.62 91 रुपए 62 पैसे का डॉलर है सर आज का एक। नहीं, ये बात भाजपा के प्रवक्ता को सुनाओ, क्योंकि मोदी जी कहते थे कि पैसे की जब वैल्यू गिरती है तो प्रधानमंत्री की वैल्यू गिरती है। हाँ, हमें नहीं पता मोदी जी की वैल्यू कितनी गिर गई, कितना गिरा हुआ महसूस कर रहे होंगे वो, जब पैसे का इतना गिरता हुआ देखते होंगे। करेक्ट। आयुष्मान उज्ज्वला 7 करोड़ घर, हर घर नल से जल, हर घर शौचालय। तो ये सब क्या आपने मोदी साहब के जो मेहनत है, पीएम किसान हो, तो क्या अचीवमेंट अपने आप में नहीं है? साफ पानी, साफ शौचालय, आयुष्मान हेल्थ, हाउ डू यू सी दैट? ये ऐतिहासिक निर्णय नहीं था क्या? हाँ बिल्कुल आपने जो बातें गिनाई उन्हीं पे बातों पे मैं जवाब दूंगा। साफ जल कितना दे रहे हैं, इंदौर में देखा है कितने लोगों की मौत हो गई, और जबकि पूरा का पूरा सिस्टम भाजपा का है। स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं भाई, कफ सिरप से कितने लोगों की मौत हो गई, आज बताइए ना किन लोगों पे इन्होंने कार्रवाई कर पाई। रियलिटी ये है कि आज इस देश का नागरिक जो मोदी जी को वोट देने के बाद ये सोच रहा था कि हमने बहुत मजबूत सरकार बनाई है, इन मजबूत तथाकथित मजबूत सरकार में आज सबसे मजबूर बन के बैठा है इस देश का नागरिक, और उसकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। लेकिन सर गलती तो उसमें आपकी है। मैं ये उदाहरण जो है ये बार बार देता हूं। मैं और प्रदीप जी इस वक्त मुंबई में, मैं आपको बता दूं सर, यहां पर एक होती है तूर की दाल, जिसको अरहर की दाल बोलते हैं ना, तूर की दाल, वो महाराष्ट्र में तकरीबन हर डिश में बनती है। तूर की दाल जो होती है हमारे यहाँ पे हर डिश में बनती है, पोहा में, इसमें उसमें हर चीज़ में होती है। सर उसका जब रेट जो ना 100 रुपये हो गया था ना सर, बीजेपी ने नाक में दम कर दिया था कांग्रेस सरकार के। आज की तारीख में वो 155 या 160 रुपये की मिल रही है, और जो प्रीमियम है वो 200 रुपये के ऊपर है। सर एक चूनी निकल रही है कांग्रेस से यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ। सर इसमें गलती आपकी है। आप क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते, क्यों नहीं सड़क पे आते? सीधी सादी बात है ना। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं तो खुद बोल रहा हूं, बीजेपी हर छोटे से मुद्दे पे स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग लेती थी, स्ट्राइक करती थी, सड़क पे आ जाती थी, ट्रैफिक बंद करा देती थी, रेल बंद करा देती थी, पता नहीं क्या कुछ कर देते थे। आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे सर। ट्विटर खेल के या फेसबुक खेल के कुछ नहीं होने वाला। ये तो ऐसा है, राहुल गांधी साहब ने भारत जोड़ो यात्रा करी 2, भारत जोड़ो 1, भारत जोड़ो 2, जिसकी वजह से आपकी 100 सीटें आ गई। कैन यू इमेजिन
अगर आप लोग सड़क पे रहें तो क्या होगा, वो आपकी सोचने वाली बात है सर। लेट मी गो टू अविरल मलिक साहब। अविरल मलिक साहब, एक चीज तो है जो युवराज सिंह यादव साहब ने जो मैं कहा, आपको जवाब दे सकता हूँ? हाँ मैं वो आपको जवाब दे- दीजिए सर, दीजिए प्लीज 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 बिल्कुल, गो। आपने जो बातें बोली है मैं एक एक करके उनका जवाब देता हूँ। बोलिए सर प्लीज। आप कह रहे थे कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी नाक में दम करती थी। माफी चाहूंगा, आप इसको रिवर्स करके देखिए कि इस देश में लोकतांत्रिक सरकार थी जी, और वो जहां पे ऑपोजिशन का विरोध भी एक्सेप्टेड था। हमें पता था कि विरोधी हमें आईना दिखाएंगे तो हमें अच्छा काम करना है, हम ईगो पे नहीं लेते थे, हम सरकार के विरोध को देशद्रोह से नहीं जोड़ते थे। और दूसरी बात ये कि मीडिया को भी सुबह फोन नहीं जाता था। सर इसका क्या मतलब हुआ? ये सेट करना सर आप माफ कीजिएगा, युवराज सिंह जी दें, प्लीज। आप लोग कुछ लोगों को छोड़ दें तो आज ये लोग जो सरकार में आए, आप बताइए ना मीडिया पे कितने से चले हैं? सर, कि अब की बात 400 पार, अब की बात 400 पार। सर माफी, आप समझिए, आप अगर ये 400 पार के नैरेटिव नहीं चलते तो आज ये धराशायी हो जाते। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं युवराज सिंह जी, आप महात्मा गांधी की पार्टी से हैं, गांधी जी की पार्टी से ना? महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अनशन किया, आंदोलन किया, सारे देश को इकट्ठा किया, इसके बावजूद कि लाठियां पड़ी, लोगों की हड्डियां टूटी, गर्दन टूटी, यहां तक कि गोविंद बल्लभ पंत जी जो पहले मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उनकी गर्दन भी स्टडी नहीं रहती थी, ऐसे करके हिलती रहती थी, क्योंकि यहां पे पंडित जी ने लाठी खाई थी गर्दन पे। किसको बचाने के लिए? पंडित जी को बचाने के लिए। तो सर आप लोग डर गए क्या? आपको यह लग रहा है कि आज हम आंदोलन करेंगे तो बीजेपी जेल में डाल देगी? ये पार्टी 150 साल पुरानी पार्टी डर गई इस छोटी सी बात से। सर मैं खुद 4 बार जेल जा चुका हूं, यहां तो हम अभी भी सच बोल रहे हैं, आपकी बात बोल रहे हैं सबके सामने, और आप इतने नौजवान होकर के डर गए। थोड़ी सी शक्ति क्या नहीं भाई बीजेपी ने, आप डर गए? बोलिए सर। अगर डर गए होते तो राहुल जी पे इतने सारे मुकदमे लगने के बाद भी वो बैठ गए होते। तो सर आपने आंदोलन कब किया? अरे सुनिए, मुझे तो ये बताइए, 200 रुपए की तूर की दाल है, आपने आंदोलन क्यों नहीं किया मुंबई में? आप ये बताइए। आज लीडर ऑफ अपोजिशन खुल के बोल रहे हैं। अरे बोल रहे हैं सर, चलिए सर, आई वोंट सर, दिस इज अ नेवर एंडिंग डिस्कशन, यू विल नॉट एग्री विद मी, आई वोंट एग्री विद यू। अविरल मलिक साहब, एक चीज के ऊपर युवराज सिंह जी का आपको जवाब देना पड़ेगा, यादव जी का। सर चाइना हमारा दुश्मन है, हर एक कोई बोलता है चाइना के खिलाफ ये करेंगे वो करेंगे। सर आज की तारीख में आपको मालूम है हमारा चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट कितना है? मतलब कितना ज्यादा इंपोर्ट हम करते हैं उनसे और कितना कम हम उनको देते हैं। $116.12 बिलियन, दैट इज द डेफिसिट है। ये इतना ज्यादा हम उनसे लेते हैं और उनको जो देते हैं, इन टोटल ट्रेड है अबाउट $150 बिलियन का चाइना के साथ, और हमारा ट्रेड डेफिसिट है $116.12 बिलियन विद चाइना। सर डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त जब ट्रेड डेफिसिट $29 बिलियन का हो गया था 2012-2013 में, मैं फिर बोल रहा हूं बीजेपी ने हाहाकार मचा दी थी। आज की तारीख में वो ट्रेड डेफिसिट has gone up to $116.28 बिलियन। सर आप क्या कर रहे हैं सर? ये तो आपकी किस्मत अच्छी है, आपकी किस्मत अच्छी है सर कि कांग्रेस सड़क पर नहीं है। आप बोलिए सर, अविरल मलिक साहब बोलिए। जी नहीं, हम तो निश्चित रूप से स्वागत करते हैं, स्वागत योग्य विषय। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, विपक्ष के सभी साथी लोग अगर इस विषय पर चर्चा करें या किसी मुद्दे को उठाएं तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय विपक्ष का, तो विपक्ष का अधिकार है बोलने का, विपक्ष का अधिकार है बात रखने का, राय रखने का। विपक्ष की स्वतंत्रता भी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इसमें किसी रूप में मैं समझता हूं कोई दो राय नहीं है। और जहां तक विषय एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप का या एक तरीके से रियलिटी का, तो इंडिया की अगर बात करी जाए तो इंडिया अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इस चीज को भी याद रखा जाना बहुत आवश्यक है। और जहां तक महंगाई का विषय, तो किस रूप में महंगाई को डिक्रीज किया जा सके, तो हर संभव प्रयास पूर्ण रूप से केंद्र सरकार निरंतर कर रही है, और जहां जहां हमारी राज्य सरकारें हैं वो भी निरंतर प्रयास कर रही हैं। और हमारा निश्चित रूप से लक्ष्य है नंबर 1 भारत का निर्माण, गरीबी मुक्त भारत का निर्माण, और उसके साथ साथ सर चाइना का ट्रेड डेफिसिट कम कैसे करोगे, ये तो बताओ। चाइना का ट्रेड डेफिसिट कम कैसे होगा? हमारे यहाँ की जो चीजें हैं वो चाइना कब इंपोर्ट करेगा ज्यादा, और उनकी एक्सपोर्ट यहाँ पर, उनकी इंपोर्ट हम कब करेंगे? हमारी एक्सपोर्ट कब बढ़ेगी, उनकी इंपोर्ट कब कम होगी, ये बताइए सर।
प्लीज। ये तो इनके नेता भी सर हर चीज में तो चाइना का माल इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। बोलिए सर अविरल मलिक साहब प्लीज। देखिए, हमारा संघ परिवार का एक संगठन है जिसे इंदेश कुमार जी वैसे चलाते हैं, मालूम है भारत सर। तिब्बत सहयोग मंच। जी। तो ये पूर्ण रूप से इसी चीज को लक्ष्य रखते हुए है कि भारत तिब्बत सहयोग मंच किस तरीके से वो भारत तिब्बत की जो बात है वो तो उनकी बात कोई सुन रहा है सर? प्रमुख लक्ष्य, लेकिन उसके साथ साथ स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, हम जन जागरण करने का काम करते हैं, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ का। लेकिन उसकी क्वालिटी भी तो होनी चाहिए ना सर। राष्ट्रीय स्वयं संस्था You are Dr. Malik. तो स्वदेशी को अपनाने सर, वाले ऐसा देश नहीं को होगा। बचाने वाले डॉक्टर लोग हैं। मलिक, और उसके शर्टलेस कैंपेन का आपने क्रिटिसाइज किया। मोदी साहब खुद कहा कि आप तो नंगे थे और नंगे होने की जरूरत क्या था, शर्ट निकालने की जरूरत क्या था, इतना क्रिटिसाइज किया शर्टलेस कैंपेन का। बट प्राइमरी एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए जहां भी आपके स्टेट गवर्नमेंट्स है, चाहे महाराष्ट्र में हो, उत्तर प्रदेश में हो, मैक्सिमम प्राइमरी प्रदेश में। स्कूल्स को being shut down. बंद किया जा रहा जी, है। बिल्कुल। तो बंद किया, आप व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट 10 लाख करोड़ वहां डाल रहे हैं, 20 लाख करोड़, तो व्हाई नॉट ऑन प्राइमरी एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर? डॉक्टर मलिक साहब, वहां आप स्कूल बंद कर रहे हो, कोई ना कोई बहाना, कहीं 40 स्टूडेंट नहीं इसलिए बंद कर, कहीं 50 स्टूडेंट नहीं कि बंद कर ना। व्हाई डोंट यू डू समथिंग फॉर दैट? क्यों नहीं करते हो आप? देखिए, आप ही की डिबेट में पिछली बार भी और इससे पिछली Yes. बार भी निरंतर 2-3 बार आपने इसी विषय को Shirtless इस campaign. तरीके से केंद्रित हाँ। करते हुए सवाल किया। तो मैं समझता हूं जहां तक मर्जर का सवाल है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करी जाए, जो स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय है, तो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर छात्रों को मिले, विद्यार्थियों को मिले, उनका एक तरीके से जो ड्रेस कोड है वो फॉलो हो, वो पूर्ण रूप से ड्रेस में रहे, ड्रेस उनके पास अवेलेबल हो, और उसके साथ साथ टेक्स्ट बुक्स उनके पास मौजूद रहे, और अच्छी शिक्षा मिले, और हर सब्जेक्ट का अलग टीचर अवेलेबल हो। तो निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य रहा है, और इसके आधार पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे टॉयलेट्स, अच्छे क्लासरूम्स, इस आधार पे जो भी आवश्यक फैसला होता है वो निरंतर लिया जाता है, और छात्रों के, विद्यार्थियों के हित में निरंतर कदम उठाए जाते रहे। लेकिन अविरल मलिक साहब 2014 से लेकर के ये उत्तर प्रदेश सरकार का आंकड़ा है, 2014 से लेकर के 2023-2024 तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने तकरीबन 25,000 स्कूलों को या तो बंद कर दिया है या मर्ज कर दिया है। सर वैसे भी गांव का बच्चा, उसको मुश्किल से तो स्कूल भेजा जाता है। अब उसका जो स्कूल होता है वो बेचारा 5 किलोमीटर दूर अगले गांव में, अब वो कहाँ से जाएगा सर? सर प्राइमरी स्कूल आप क्यों बंद कर रहे हैं? आप मुझे ये बताइए। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, विश्वगुरु होने की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर इतना आप खर्च कर रहे हैं। सर बेस ही अगर नहीं होगा तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो ये आईटी सेक्टर जो अभी हो रहा है, बाय द वे, ये क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सिर्फ शहरों के लिए रह जाएगी क्या? गांव का बच्चा पीछे रह जाएगा? आप बताइए ना अविरल मलिक साहब। 25,000 स्कूल आपने बंद किए हैं सर, ये ऑफिशियल आंकड़ा है। 25,000 schools from 2014 up till today, sir. अविरल मलिक साहब बताइए ना, बताइए। आई थिंक दिस इज, नहीं, मैं उसी चीज की बात इसके कर रहा ऊपर हूं। आपको अगर ध्यान स्कूल देना मर्जर चाहिए। की बात कर जाए, तो स्कूल मर्जर की आपने सवाल किया, तो निश्चित रूप से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, इसको लक्षित रखते हुए, और इस लक्ष्य के आधार पर निरंतर काम किया जाता है। और जहां तक स्कूल बंद होने का सवाल है, तो स्कूल बंद ना हो, ज्यादा से ज्यादा नए स्कूल बने, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। Right, so next ये time you हमारा come- लक्ष्य है, और इस लक्ष्य के आधार पर हमारी सर, अगली बार जब आप आएंगे ना, और ज्यादा नए स्कूल बनाए जाएंगे, नए स्कूल बनाए जाएंगे, और जितनी आवश्यकता होगी, और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनसे बेहतर स्कूल बनाए जाएंगे, हमारा ये लक्ष्य है। वन क्वेश्चन टू युवराज जी बिफोर वी गो। युवराज जी, बुलडोजर भी चलेगा, योगी जी बुलडोजर ऑल्सो विल गो वर्क एज वेल एज ब्रह्मोस, दोनों चलेगा। योगी जी, सलीम वास्तिक के जो अटैकर्स है, एनकाउंटर हो गया, जो क्राइम करते हैं या जेल में होगा या ऊपर चले जाएंगे। योगी जी स्पष्ट है, सिक्योरिटी सेफ्टी, मगर एनकाउंटर जब भी होता है तो आप आलोचना करना शुरू करते हैं। हत्या उससे पहले जो अटैक हो गया उसमें आप कुछ आलोचना नहीं करते। कांग्रेस क्या है, तुष्टीकरण का राजनीति है? युवराज जी देखिए, स्पष्ट बोलूं, बुलडोजर मॉडल संविधान को कुचलने का मॉडल है, और मुझे नहीं पता कि आप लोग प्रयागराज के जो हाईकोर्ट है उसकी टिप्पणियों पर कितना गौर करते हैं। प्रयागराज के जो हाईकोर्ट है उसने तमाम समय पर यूपी सरकार को आईना दिखाने का काम किया है, लेकिन ये संविधान विरोधी लोग ये इतने आसानी से मानने वाले नहीं है। लोगों ने मन बना लिया है, 1 साल से कम बचा है, ये संविधान विरोधी सरकार को लोग आने वाले समय में सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे।
जी, लेकिन कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जान करके आप ईरान का सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ये लग रहा है, कांग्रेस को ये लग रहा है कि शायद मुसलमान वोट आपके पास वापस आ जाए। अरे क्या ये बात ठीक है? मैं तो इनसे पूछ रहा हूं कि आपका भाई स्टैंड क्या है। आप या तो ईरान के साथ हो या खिलाफ हो, आप बोल तो दीजिए। जी, मैं इस देश के नागरिक के नाते मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, अपनी सरकार से सवाल कर रहा हूं, और मुझे दुख इस बात का है कि इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आप मुझ पे जो आरोप लगाना चाहते हैं वो लगा लेना, जितने आरोप लगाना चाहते हैं उतने आरोप लगा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है आप हर घटना को सिर्फ धर्म के एंगल से देखेंगे और आपको दूसरी किस तरह से चीजों को देखनी चाहिए, इस तरह का आपका पास नजरिया ही नहीं है। अविरल मलिक साहब, डॉक्टर साहब, आप इसके ऊपर जवाब देना चाहेंगे कि आप ईरान के साथ हैं, ईरान के खिलाफ हैं? स्पष्ट है। देखिए, जहां तक यादव जी कह रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट है, शांति के पक्ष में हम हैं, मानवता के पक्ष में है। और मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी राजनीतिक दल, सभी इंसान है सबसे पहले, और सभी मानवता के पक्ष में होंगे, मानवता की बात करने वाले लोग हैं और मानवता प्रेमी हम सब लोग हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय होने के नाते, एक समाज के एक व्यक्ति होने के नाते भी, साधारण व्यक्ति भी कोई भी इस बात को कहेगा ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। हम हमारा आपसे एक और सवाल पूछता हूं सर, ये तो कहने वाली बात हो गई सर, ये तो बात होगी जो हम नॉर्मली बोलते हैं उसमें कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में, ह्यूमन राइट्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड, ह्यूमन राइट्स नीड टू बी रिस्पेक्टेड, एटसेट्रा एटसेट्रा। सर मैं आपसे सीधी बात पूछ रहा हूं, आज की तारीख में अगर आप ईरान के साथ खड़े होते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था एडवर्सली इफेक्ट होती है, नेगेटिवली इफेक्ट होती है। सीधी बात है सर, आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है आपको यूएई के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, कुवैत के साथ, बाकी अरब कंट्रीज के साथ, इजराइल के साथ और यूएस के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप नहीं खड़े होते हैं, बैलेंस आपका रुख जो है उस तरफ होना पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो बहुत तकलीफ हो जाएगी देश को। आप इसके बारे में क्या बोलेंगे डॉक्टर मलिक? ये मेरा व्यू है, आगे आप बोलें सर प्लीज। डॉक्टर साहब देखिए, बिल्कुल, और उसके साथ साथ हमने तो अपना व्यू, जो देश का व्यू है वो बिल्कुल स्पष्ट है। हम शांति, अमन, चैन की बात करते हैं और अब जिसे जो समझना है विश्व में वो समझे, हमें कोई समस्या नहीं है। हम शांति के साथ हैं, हम अमन चैन के साथ हैं। थैंक यू वेरी अब मच। किसी का कोई भी व्यू इसमें हो सकता है और कोई कुछ भी सोच सकता बट है। एनीवे, कांग्रेचुलेशन जेंटलमैन फॉर अ ग्रेट ट्रीटी बिटवीन कनाडा एंड इंडिया। कनाडा और इंडिया के बीच में जो तनावपूर्ण स्थिति थी अब वो ठीक हो गई है। दी अर्लियर गवर्नमेंट इज गॉन। खालिस्तानियों के बारे में मार्क कार्नी साहब ने पब्लिक में बोला है कि खालिस्तानियों को कनाडा की धरती का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा किसी भी सरकार के खिलाफ। भारत के खिलाफ तो बिल्कुल ही नहीं, ऐसा उन्होंने कहा है। दैट्स व्हाट ही हैज सेड। We've been trying for it now for a long time, right from the time of Mrs. Gandhi up till today. We had been trying for it, and finally we seem to have succeeded. So, gentlemen, thank you very much for joining us, especially Yuvraj Singh Yadav Sahab. Great pleasure having you on the show. So nice of you, sir. And for coming. Dr. Malik is I hope always you keep coming. And Dr. Malik, थैंक यू सो मच। Dr. Malik, you're always a star. Thank you very much, sir, for coming. बहुत धन्यवाद। Namaskar, Thank you so namaskar. much. Vande Jai Shri Mataram. Vande Jai Shri Mataram. Jai Shri Ram. Well, I tell you what, it's very easy to say, are you with Iran or aren't you with Iran? How can you be with Iran? Are you mad or what? You've just concluded a treaty with the US. You've got a great relationship with Saudi Arabia. You're not even buying oil anymore from Iran. And whereas India has made it very, very clear, hey, listen, this is not our war, this is your war, okay? We are not going to be sending any troops anywhere. But for India, for the Congress to expect India to come along and say, hey, we condemn the killing of Ali Khamenei, it's not going to happen. You betrayed Iran. You, Mr. Modi, has betrayed Iran. Yeah, really. Mr. Modi is silent on the assassination of Khomeini and the other senior leaders. Thank God. So, I would say thank God. It is not our business. At one time, India used to poke its nose in everybody else's business. This is not our business. It's not India's business. All right? And the other thing, let's be very clear. Pakistan has declared a war on Afghanistan. Nobody's talking about it. And Afghanistan has just attacked the Noor Khan base. अभी तो नूर खान बेस उन्होंने रिपेयर करी थी बेचारों ने, पाकिस्तानियों ने, उसको फिर दोबारा तोड़ दिया अफगानियों ने। मतलब यार ये क्या है? In any event, I think this is the Congress is being very impractical. You can't do it. Let's be very clear. The world has changed. All the Arab countries are with you, Pradeep ji. Whether it's Saudi Arabia, whether it's Qatar, whether it's Abu Dhabi, whether it's Dubai, or the entire Emirates, they are standing with India. India is standing with them. You expect us to get their enmity, मतलब उनकी दुश्मनी ले लें और ईरान के साथ खड़े हो जाएं। वाह, जबरदस्त।
कांग्रेस की अगर यही पॉलिसी है तो बहुत अच्छा है कि कांग्रेस जो है वो विपक्ष में है। प्रदीप जी। No, exactly. When everybody knew in the political top government that there's a war, and the war was waiting to happen. It was clear. The warships moving, the movement of arms and ammunition, everything depicted to a war. And Mr. Modi, knowing that there's a war, goes to Israel, and they have a great hug. Benjamin Netanyahu Yes. and Prime Minister Modi saying they're the best of friends. And the whole parliament of Israel standing up and screaming Modi, 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 Modi. That was something. Oh God, And that was really something. Modi, among the most important things, said we denounce terror in all forms, India and Israel. And he named Hamas. Denounce terror. He named Yes, that's Hamas. what. Now at this particular moment to go in Israel and then declare together jointly that they are working against terror, a war on terror, and terrorism anywhere is a threat to nation, world everywhere. At the same time also understanding that this is a war on terror. Among all things to say this, and then come back in 2 days the war happens. I mean, Modi has been And very Chhabhar clear. has not been attacked. Yes. And Modi has Chhabhar been is protected. Absolutely clear cut. He has not condemned the attack on Iran. He said things should be sorted out peacefully. That's it. But he condemned the attack on UAE, And on Saudi Arabia. on Qatar, and all these Kuwait. Wherever they attack Bahrain, wherever he has spoke to the chiefs of the states and told them that India is with them. That shows where India is. It's Why very do you clear. need to announce it? Yeah, we don't need to announce it. And number two is the only practical solution available at the moment. Where do you want India to be? You want us to stand with Iran, which has supported Hamas, which has supported Hezbollah, which has supported the Houthi rebels? I mean, come on. Which And when- world are you living in? जब इंडिया आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर वी वेंट घुस के मारे हैं जी। पाकिस्तान में जितने एयरबेसेस है 18-19 वो डैमेज कर दिया जैश ए मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर्स को तोड़ दिया इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ दिया जी। तो व्हेन वी हैव डन इट then doesn't Israel have the right, doesn't Saudi All Arabia countries have have the the right right. to end the roots of terrorism from wherever it That's originates? right. So we are और अगर हमस के टेररिस्ट जो हैं जिन्होंने इजरायली बच्चों को इतनी बेरहमी से काट काट के उनकी गर्दनें काट काट के मारा, वो अगर जाके हॉस्पिटल में छुप जाते हैं, लोगों के बीच में छुप जाते हैं, तो इजरायली क्या करें भाई? You'll have to hit them back, right? How do you hit them back? Now, if that is considered a genocide, well, that's between the Israelis and Hamas. And in any event, in that particular part of the world, they've been fighting now for the last 2,300 years. So, nothing And new. now there's a talk that Iran has warned Pakistan. It has attacked US bases across the Gulf. Yes. It has talked about US bases in In Pakistan, that's right. Because they were used, by the way, against Iran. Yes. And most of the intelligence with regard to Ayatollah Ali Khamenei's actual location was provided by the President of the US, namely Donald Trump's favorite Field Marshal, Asim Munir. Asim Munir's people provided Mr. Trump with the whereabouts of Ayatollah Khamenei. So which means Pakistan is now working with Israel. Good for them. Well, good for them. Wherever they work, they've got an agreement with Saudi Arabia also. Yeah, they got an agreement with Saudi Arabia. And War on Saudi Arabia is a war on them. Pakistan. But the Saudis are now with Israel. Saudi Arabia, Israel and US, they are the ones who are attacking Iran. That's it. As far as we are concerned, I'm very glad that Mr. Modi has kept us out of it. I'm very glad we are celebrating Holi while the rest of the world is killing itself. God bless you all. We would request you, come on the table, talk about it peacefully, solve it peacefully, but if you can't, leave us out of it. That's it. We are not interested. और जितने लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना अली खामेनी की असैसिनेशन वगैरह वगैरह बात, भैया ईरान जाना, जाओ ना यार आप लोग. मैं तो फिर बोल रहा हूँ, चले जाओ वहाँ पे, लड़ो, ईरान के बिहाफ पे लड़ो, इजराइल के खिलाफ लड़ो, यूएस के खिलाफ लड़ो, सऊदी अरेबिया के खिलाफ लड़ो, जाओ. यहाँ पर क्या कर रहे हो? Why are you protesting against the death of Ali Khamenei? Here, in Mumbai, in Kargil, in Lucknow, in Madhya Pradesh. यहाँ पर क्यों कर रहे हैं आप?
जब बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाया गया, जिंदा जला दिया गया, बहुत लोगों को मार दिया गया, तब तो आप सड़क पे नहीं आए भाई, तब तो आपको सामसूंग गया। अभी अली खामेनी को मार दिया, वो तुम्हारा चाचा लगता है, चलो भाई चाचा जान लगते होंगे तुम्हारे, मुझे मालूम नहीं है। That's it, that's all. Well, by the way, he does have an Indian connection. You know, great grandfather, somebody was born over here in India. So, maybe because of that, God knows. In any event, that's it, that's all we've got for you in tonight's show. और आज आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से और पूरी नेशन नाउ की पूरी टीम की तरफ से होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। Happy Holi to everybody. Greetings Have a of Holi. safe Holi. Have a happy Holi. And try not to harass people. And don't get harassed yourself. That's all I'm saying. And if you need to drink, drink very, very peacefully. And don't drive while you're drinking. Get somebody else to drive who is not drinking. Pradeep ji. Absolutely. Greetings of Holi to all our viewers across the nation, across the world who are watching RKB show and Nation Now. And we hope they have a very peaceful and joyful Holi tomorrow. Peaceful and joyful Holi. In some places it's going to be celebrated tomorrow. In other places day after tomorrow. It has to do with the eclipse. The first lunar eclipse of the year. I could go on. But then that'll take all night. But that's it from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को नमस्कार. और वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को भाई. When you click to that icon, subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. And you can share the channel and you can like the channel if you like it. Or you can condemn us also. No problem. You can dislike the channel also if you dislike it. But send in your comments. अपने comments जरूर भेजें. As colorful as they can be, and I'll read them out right over here. Or at least I will read them out myself. But that's it. That's all we've got for you. आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, Vande Mataram. भारत माता की जय, जय हिंद. Jai Hind.